ملک بھر میں عید الفطر آج مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات، ملک کی ترقی اور خوشحالی، مسلم امہ کی فلاح، مظلوم کشمیری اور فلسطینی عوام کے لیے خصوصی دعائیں، ملک بھر میں فول پروف سیکیورٹی انتظامات۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں نماز عید الفطر کی ادائیگی۔ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز، وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ سمیت پارٹی کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی، امت مسلمہ کے اتحاد اور خطے میں امن و امان کے لیے دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم فردن لوگوں سے ملے، عید کی مبارکباد دی۔ صدر آصف علی زرداری نے عید الفطر کی نماز زرداری ہاؤس نواب شاہ میں ادا کی۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ، میئر نواب شاہ اور اعلیٰ افسران کی بھی صدر مملکت کے ہمراہ نماز عید کی ادائیگی۔ ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا۔ صدر مملکت شہریوں سے عید بھی ملے۔ نماز عید کے اجتماع میں شہریوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کا ٹیلی فونک رابطہ، عید کی مبارکباد دی۔ امت مسلمہ کے اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا۔ وزیر اعظم کی خطے میں جاری جنگ اور بحرین کے خلاف حملوں کی شدید مذمت۔ حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے شاہ بحرین کو خطے میں امن کی بحالی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دو طرفہ اور علاقائی امور پر قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ پاکستان جنگ کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ترکمانستان کے صدر سردار بیردی محمدوف کا ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد کا تبادلہ۔ ترکمانستان کے صدر کا پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ تجارت، توانائی، روابط اور علاقائی ترقی میں تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ کرم، نماز عید افسروں اور جوانوں کے ساتھ ادا کی۔ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ فیلڈ مارشل کی جوانوں کے بلند حوصلے اور پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ آپریشن غضب للحق کی کامیابیوں اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک کی بے کنی پر جوانوں کی بہادری کو خراج تحسین۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے لیے پرعزم۔ دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال کسی صورت برداشت نہ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کے لیے خدمات سر انجام دینے والے سیکیورٹی فورسز کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسپیکر قومی اسمبلی، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور سیاسی قائدین سے ٹیلی فونک رابطے، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں اور سیاسی جماعتوں کے قائدین سے بھی رابطہ۔ ٹیلی فونک گفتگو میں وزیر اعظم نے سیاسی قائدین اور رہنماؤں کو عید کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر فیصل ممتاز راٹھور، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ یار محمد سے ٹیلی فونک گفتگو، عید الفطر کی مبارکباد دی، نیک خواہشات کا اظہار۔ عید کے پرمسرت اور بابرکت موقع پر پاکستان کی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں وزیر اعظم۔ صدر آصف علی زرداری سے منتخب نمائندوں اور عمائدین کی نواب شاہ میں ملاقات۔ صدر مملکت کے منتخب نمائندوں کو ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اور عوامی مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ اپنی صلاحیتیں ملک کی ترقی کے لیے وقف کریں، صدر آصف علی زرداری۔ مجھے یہ تجویز دی گئی کہ پٹرول کی مد میں 76 روپے فی لیٹر اضافہ اور ڈیزل کی مد میں 177 روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے، لیکن میں نے
एहसास ज़िम्मेदारी के तहत इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। गुज़श्ता 2 हफ्ते के दौरान अवाम के इज्तिमाई मफाद के पेश नज़र वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमत में अब तक 127 रुपये फ़ी लीटर और डीज़ल की कीमतों में 252 रुपये फ़ी लीटर इजाफे को रोकने के लिए अपनी बचतों और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की खतीर रकम खर्च कर चुकी है, जो कि हालिया तारीख में खर्च की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा न करने का ऐलान। हुकूमत ने 45 अरब रुपए का बोझ खुद उठाकर अवाम को कमर तोड़ महंगाई से महफूज रखा। खित्ते में तवानाई तनसीबात पर होने वाले हमलों ने सूरत हाल को मज़ीद कशीदा कर दिया। गरीब और महरूम तबके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना तरजीह है। हुकूमत ने मजमूई तौर पर 69 अरब रुपए का माशी दबाव बर्दाश्त किया। सादगी और किफ़ायतशारी को अपनाना होगा। मशरिक़ वस्ता में जंग के जल्द खात्मे के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म इस बारे में बड़े फिक्रमंद भी रहे और उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किफ़ायतशारी सादगी को अपनाएंगे और अवाम पर बोझ नहीं डलने देंगे। हमें भी हिदायत मिली 60% गाड़ियां ग्राउंड कर दें, 50% तेल कम कर दें, तनख्वाह नहीं देंगे, वो सारा कुछ हो रहा है। मैं बहुत मुद्दबाना ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम तेल की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। ये बचत अब हमें पूरी कौम को करनी होगी। हुकूमत के बरवक्त इकदामात से तेल के वाफर ज़खायर मौजूद। हुकूमत अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालना चाहती, बरवक्त इकदामात यकीनी बनाए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल सूरत हाल में बड़ी दूर अंदेशी के साथ फैसले किए। किफ़ायतशारी के तहत 50% गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। जिम्मेदार कौम होने का सबूत देना होगा। वज़ीर इत्तलात तौला ताड़की, वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कैमरा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज तवानाई की कीमतें हैं, जो खलीज के अंदर जो क्रूड की कीमतें हैं, वो हालिया तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी सारी टीम को, माशी टीम को इकट्ठा करके किफ़ायत शारी और अपनी पेटी कस के जो इखराजात के अंदर कटौती करके जिस हद तक पैसे समेट सकते थे उन्होंने उसका इंतज़ाम किया और तकरीबन 27 अरब रुपए एक खसूसी फंड के अंदर मुहैया किए। जंग की वजह से खित्ते में कशीदा सूरत हाल और माशी मुश्किलात का सामना, तनाज़ात की वजह से ईद की खुशियां मान हैं। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने मुश्किल सूरत हाल में दानिशमंदाना फैसले किए। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज की। किफ़ायतशारी इक़दामात पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। वज़ीर आज़म ने अवामी तकालीफ को सामने रखते हुए पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखी। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक। मुसल्लह अफवाज की जानिब से कौम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। अस्करी क़यादत का वतन के मुहाफ़िज़ों और उनके अहल खाना को ज़बरदस्त ख़िराज तहसीन। पाक फ़ौज के लिए ईद का हकीकी जज्बा अपने प्यारों से दूर रहकर मादरे वतन के दिफा और कौम के अमन सुकून को यकीनी बनाने में पिन्हा है। दुआ है ये ईद पाकिस्तान और उम्मत मुसलमा के लिए अमन, खुशहाली और ढेरों बरकतें लाए। ISPR। वतन के महापुरुष से चीन की बर्फपोश पहाड़ियों से पूरी कौम पाकिस्तान को ईद मुबारक पेश करते हैं। आप अपने घरों में अहले खाना के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं। हम यहाँ सख्त सर्दी, तेज बर्फानी हवाओं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी खुशी यही है कि पाकिस्तान का हर शहरी अमन, सुकून और आज़ादी के साथ ईद की खुशी मना सके। इन बर्फानी चौकियों पर हर सिपाही के दिल में एक ही जज्बा है, वतन की हिफाजत और कौम की सलामती। आपकी दुआएं हमारी ताकत है और आपकी मोहब्बत हमारा हौसला। आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन के महापुरुष
फर्ज पहले खुशियां बाद में। पाक फौज के जवानों का हर त्यौहार पर सरहदों की हिफाजत का पुख्ता आज़म। बर्फीले पहाड़, आहनी आज़म। दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन से पाक फौज के बहादुर सपूतों की कौम को ईद की मुबारकबाद। श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद मुसलसल 8वीं नमाज ईद के लिए बंद। इंतजामिया ने मस्जिद के दरवाजे अलसुब बंद कर दिए। भारतीय फोर्सेस तैनात। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक घर में नजरबंद। अंजुमन औकाफ का मस्जिद बंद करने पर इजहार तशवीश। ईद कश्मीरी मुसलमानों के लिए ज़हनी अजियत में बदल गई है। मीर वाइज उमर फारूक। भारत में एलपीजी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई कंपनीज बंद होने के करीब। हजारों मजदूर शहर छोड़कर आबाई इलाकों का रुख करने लगे। हिमाचल प्रदेश की रियासती असेंबली का किचन गैस से लकड़ियों पर मुंतकिल। शहरी 4 से 5 दिन सिलेंडर का इंतजार करने पर मजबूर। खवातीन मुश्किलात बयान करते हुए आबदीदा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ईरान, जापान और उससे मुतालिका जहाज़ों का आबने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने के लिए तैयार। जापानी हुकाम के साथ गुफ्तगू जारी। मकसद आबने हुर्मुज़ में मौजूद रुकावटों में आर्जी नरमी लाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा। ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात ही आबने हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने का सबसे मौसर तरीका है। जापानी हुकूमत के एक एहलकार ने ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात ही आबने हुर्मुज़ का मुहासरा ख़त्म करने का सबसे मौसर तरीका करार दिया। अमरीका ने 30 रोज के लिए आर्जी तौर पर ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त की इजाजत दे दी। नए लाइसेंस के तहत जहाजों पर लोड तेल की फरोख्त की इजाजत होगी। नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। अमरीकी महकमा खजाना। पाबंदियां खत्म करने की बात सिर्फ खरीदारों को उम्मीद दिलाने के लिए है। अमरीकी फैसला खाम तेल कीमत में कमी के नफसियाती हरबे के सिवा कुछ नहीं। ईरान। नतंज में ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीका और इसराइल का हमला। अमरीकी सेंटकॉम का 5000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाने का दावा। आबने हुर्मुज़ में महफूज नकल हमल के लिए चैलेंज बनने वाले हर खतरे को निशाना बनाएंगे। कमांडर सेंटकॉम एडमिरल ब्रैड कूपर नतंज की जौहरी तंसीब पर हमले का जायजा ले रहे हैं। नतंज जौहरी तंसीब के मकाम पर ताबकारी की सतह में इजाफे की इतला नहीं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बायस आलमी तवानाई मंडी में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर नुमाया इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल और WTI की कीमत $98 फी बैरल से बढ़ गई। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क भर में अगले 24 घंटे के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। NDMA की जानिब से शुमाली इलाका जात में बर्फबारी का अलर्ट जारी। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हैदराबाद, थरपारकर और कराची समेत सिंध के मुतादिद इलाकों में वक्फे से बारिश मुतवक्की। इस्लामाबाद और पंजाब भर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। अवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मेरी तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी है, सबको ईद मुबारक। खुश रहें और ईद की खुशियाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी बांटें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर कौमी मेन और विमेन क्रिकेटर्स की जानिब से कौम को ईद की मुबारकबाद। अपना ख्याल रखें, अहले खाना और दोस्तों के साथ खुशियों भरी ईद मनाएं। दुआओं में सबको याद रखें। क्रिकेटर्स का तहनीती पैगाम। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जानिब से ईद के मौके पर दुनिया भर के मुसलमानों के लिए मुबारकबाद। सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपका अहले खाना और अपने प्यारों के साथ ये दिन स्पेशल होगा। ईद की मुनासबत से लिबास पहने। रोनाल्डो का सोशल मीडिया पर पैगाम। और 7 बार के आलमी चैंपियन इंग्लैंड के रॉनी ओसलोवान ने वर्ल्ड ओपन स्नूकर में तारीख रकम कर दी। 50 साल खिलाड़ी ने 153 पॉइंट्स का प्रोफेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके सबको दंग कर दिया। इससे काबिल ये एजाज स्कॉटलैंड के जेमी बर्नेट के पास था, जिन्होंने 2004 में यूके चैंपियनशिप क्वालिफायर्स में 148 पॉइंट्स का ब्रेक खेला था।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार दर्दमंदी दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल, मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज, ये है मेरा आप सबका हम सबका पाकिस्तान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में मसाजिद, ईदगाहों और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमा किराम ने ईद उल फितर की फजीलत और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और उम्मत मुसलमा की फलाह बहबूद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर मजलूम कश्मीर और फ़लस्तीनी अवाम के लिए भी खुसूसी तौर पर दुआ की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की नमाज लाहौर में अदा की। वज़ीर आज़म के साहबजादे साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ समेत पार्टी कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। साहिबजादा मुफ्ती मोहम्मद अहमद रजा ने नमाज ईद पढ़ाई। नमाज ईद के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद और खत्ते में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फर्दन फर्दन लोगों से ईद मिले और उन्हें मुबारकबाद दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने ईद उल फितर की नमाज जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, दीगर मुंतखब नुमाइंदों और आला अफसरान ने भी ईद उल फितर जरदारी हाउस नवाब शाह में अदा की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद व यंगांगत और खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ की गई। नमाज ईद अदा करने के बाद सदर ममलकत शहरियों और मायदीन से ईद भी मिले और उन्हें ईद की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म ने शाह हमद और बहरीन के ब्रदर अवाम को ईद की मुबारकबाद दी। शाह हमद ने भी वज़ीर आज़म को ईद की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में जारी जंग, बिलखुसूस बहरीन के खिलाफ किए गए हमलों की शदीद मजम्मत का इयादा करते हुए कीमती जानों की ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के साबिर और तहामुल को सराहते हुए मुश्किल की इस घड़ी में बहरीन के लिए पाकिस्तान की एकजहती और हिमायत का इयादा किया। वज़ीर आज़म ने बहरीन के बादशाह को खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से भी आगाह किया। उन्होंने बहरीन के बादशाह को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान जारी जंग के खात्मे के लिए तमाम सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा और इलाकाई उमूर पर करीबी रवाबित में रहने पर इत्तेफाक किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बैदी ममदोव से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने तुर्कमानिस्तान की क़यादत और अवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। सदर तुर्कमानिस्तान में भी नहायत गर्मजोशी से पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों, खुसूसन तिजारत, तवानाई, रवाबित और इलाकाई तरक्की में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने जारी इलाकाई इक़दामात में ताउन, बिलखुसूस बाहमी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाने की अहमियत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाए के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ से टेलीफोनिक राबता किया। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज चीफ्स को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों और अफसरान को खराज तहसीन पेश किया जो ईद के दिन भी अपने अहलो अयाल से दूर सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर, गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और रहनुमाओं के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इयादा करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर स्पीकर कौमी असम्बली, गवर्नर्स, वज़राए आला और सियासी कायदीन से टेलीफोनिक गुफ्तगू की। वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलोचिस्तान शेख जाफर खान मंदोखेल को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से भी टेलीफोनिक रब्ता किया और ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। ईद के पुरमसरत मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों और सियासी जमातों के कायदीन से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। उन्होंने सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान, चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी, अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमन वली खान, सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी सरदार खालिद हुसैन मक्सी, सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी सालिक हुसैन को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी से जरदारी हाउस नवाबशाह में ईद उल फितर के मौके पर मुंतखब नुमाइंदों और अमायदीन ने मुलाकात की और ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन लंजार, अली हसन जरदारी, मेयर नवाब शाह, काजी रशीद भट्टी, डिप्टी मेयर मुबशर अराई, पीपल्स पार्टी के रहनुमा और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन शामिल थे। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुंतखब नुमाइंदों को अपने अपने हलकों में तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने और आवाम के मसाइल हल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि ईद उल फितर के मौके पर अपने हमसायों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें और आवाम से रवाबित को बढ़ाएं। उन्होंने मुंतखब नुमाइंदों को हिदायत की कि अपनी सलाहियतें मुल्क की तरक्की के लिए वक्फ कर दें। ईद उल फितर की खुशियां अफसरों और जवानों के साथ मनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कुरम का दौरा किया। उन्होंने ईद की नमाज अदा की और मुल्क की सलामती, अमन व खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह अफवाज को दिल की गहराइयों से ईद की मुबारकबाद दी और उनकी बेलौस खिदमात, बुलंद हौसले और पेशावराना सलाहियतों की तारीफ की। फील्ड मार्शल ने हालिया ऑपरेशन की कामयाबियों को उजागर करते हुए ऑपरेशन गज़ब लिल हक में फौजी जवानों की बहादुरी और अज़म को खराज तहसीन पेश किया, जिन्होंने दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को खत्म किया और सरहदी इलाकों में अमन कायम किया। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के आज़म को दोहराया। फील्ड मार्शल ने कहा कि ये कामयाबियां शोहदा की कुर्बानी और अफसरान और सिपाहियों की गैर मुतज़लज़ल कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने मुसल्लह अफवाज के जज्बे और साबित कदमी पर फख्र का इजहार किया। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पाक फौज की गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी को दोहराया। इससे कबल कुरम पहुंचने पर कोर कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्हें इलाके की सिक्योरिटी और ऑपरेशनल सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा न करने का ऐलान किया है। उन्होंने कौम से खिताब के दौरान कहा कि हुकूमत ने तवानाई की कीमतों में इजाफे का बोझ खुद उठाकर आवाम को कमर तोड़ महंगाई से महफूज रखा है। कौमी वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया है। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर कौम से खिताब में आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा न करने का ऐलान करके हकीकी ईदी दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया गैर मामूली हालात से दो चार है। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, ताहम गरीब और महरूम तबके का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हुकूमत की सबसे बड़ी तरजीह है। मुझे ये तजवीज़ दी गई कि पेट्रोल की मद में 76 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा और डीज़ल की मद में 177 रुपये फ़ी लीटर इजाफ़ा किया जाए, लेकिन मैंने एहसास ज़िम्मेदारी के तहत इन खुशियों भरे लम्हात में पेट्रोल और डीज़ल की मद में कीमतों के होशरुबा इजाफे की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मैंने ये फ़ैसला किया कि तेल की कीमतों में इस इजाफे से पैदा होने वाला तकरीबन 24 अरब रुपए का बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और इस मकसद के लिए हमने अपने बजट में ज़रूरी कटौतियाँ की, तरक्याती अखराजात को महदूद किया और चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान
اور آزاد کشمیر کے 24 کروڑ عوام پر تیل کی قیمتوں کا مزید بوجھ نہیں پڑنے دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں اپنے زندگی میں سادگی اور کفایت شاری کو اپنانا ہوگا۔ ایثار اور قربانی کے جذبے سے ہم اس بحران سے نکل سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومت نے 69 ارب روپے کا بوجھ برداشت کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 127 اور ڈیزل کی قیمت میں 252 روپے فی لیٹر کا مجموعی اضافہ روک کر اس خسارے کو اپنی بچتوں سے پورا کیا ہے۔ ہمارے خطے میں جاری جنگ نے نہ صرف عالمی معیشت اور امن و استحکام کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ جو تیل چند ہفتے قبل $72 فی بیرل دستیاب تھا، وہ صرف 3 ہفتوں میں $158 فی بیرل کی تاریخی حد عبور کر چکا ہے، اور اگر صورتحال یوں ہی بگڑتی رہی تو پھر مزید اضافے کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ وفاقی حکومت پٹرول کی قیمت میں اب تک 127 روپے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمتوں میں 252 روپے فی لیٹر اضافے کو روکنے کے لیے اپنی بچتوں اور ترقیاتی بجٹ میں سے 69 ارب روپے کی خطیر رقم خرچ کر چکی ہے، جو کہ حالیہ تاریخ میں خرچ کی جانے والی سب سے بڑی رقم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ کفایت شاری اور بچت کی مہم کا آغاز حکومت سے کریں گے۔ ہم نے قومی وسائل کے ذمہ دارانہ استعمال کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود روزانہ کی بنیاد پر کفایت شاری کے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ کفایت شاری اور اعتدال سے کام لیا جائے۔ موجودہ بحران سے نکلنے کے لیے حکومت کے مؤثر اقدامات کے ساتھ ساتھ اشرافیہ بھی تعاون کرے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزراء طاولہ تارڑ اور علی پرویز ملک نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشکل صورتحال میں بڑی دور اندیشی کے ساتھ 45 ارب روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنے کے بجائے خود برداشت کیا۔ حکومت کفایت شاری اقدامات پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ضروری ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے طاہر جعفری۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کی معاشی ٹیم کے بروقت اور دانشمندانہ اقدامات سے ملک میں تیل کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت نے 45 ارب روپے کا بوجھ عوام پر ڈالنے کی بجائے خود برداشت کیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی بچت کے لیے عوام کا تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم اس بارے میں بڑے فکر مند بھی رہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بالکل کفایت شاری سادگی کو اپنائیں گے اور عوام پر بوجھ نہیں ڈلنے دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی وزارتوں کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں بھی ہدایت ملی 60% گاڑیاں گراؤنڈ کر دیں، 50% تیل کم کر دیں، تنخواہ نہیں دیں گے، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جا رہا ہے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے۔ مگر دیکھیے یہ ایک اجتماعی مسئلہ ہے۔ میں بہت مؤدبانہ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تیل کی بچت کے لیے غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور ہم کنزرویشن کی طرف جائیں۔ ہم جتنا ہو سکے کار پول کریں، جہاں پہ اجتماعی سفر کو ہم فروغ دیں، جہاں پہ 4-5 لوگوں نے ایک ہی جگہ پہ جانا ہے ہم اس کے لیے کار پولنگ کا سسٹم اپنائیں، ایک گاڑی استعمال کریں۔ جن کے پاس ایک سے زیادہ گاڑی ہے وہ چھوٹی کیپیسٹی والی گاڑی استعمال کریں تاکہ تیل جو ہے وہ کم سے کم خرچ ہو۔ تو یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا کہ جنگ کے باعث پورے خطے میں صورتحال کشیدہ ہے اور معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ حکومت کفایت شاری اقدامات پر سختی سے عمل پیرا ہے۔ جو آگ ہمارے ایک ہمسائے ملک سے شروع ہوئی تھی اس نے پوری خلیج کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو تکالیف معاشی طور پہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو اس کی وجہ سے آج یقیناً ہماری خوشیاں مدھم ہیں۔ آج توانائی کی قیمتیں ہیں، جو خلیج کے اندر جو کروڈ کی قیمتیں ہیں وہ حالیہ تاریخ کی بلند ترین سطح کے اوپر۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنی ساری ٹیم کو، معاشی ٹیم کو اکٹھا کر کے کفایت شاری اور اپنی پیٹی کس کے جو اخراجات کے اندر کٹوتی کر کے جس حد تک پیسے سمیٹ سکتے تھے انہوں نے اس کا انتظام کیا، اور تقریباً 27 ارب روپے
ایک خصوصی فنڈ کے اندر مہیا کیے۔ وفاقی وزراء نے کہا کہ وزیر اعظم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں، عوام کفایت شعاری مہم کے تحت کم سے کم سفر کریں اور غیر ضروری تفریح سے اجتناب کریں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں کہیں کہیں جبکہ سندھ اور پنجاب میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بالائی خیبر پختونخوا اور جنوبی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان بھی موجود ہے۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹھی 38 اور تربت میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد 26، لاہور 28، کراچی 32، پشاور 22، کوئٹہ 24، ملتان 29، اسکردو 12، گلگت 18، مظفر آباد 23 اور سری نگر میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں نماز عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جہاں لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ نماز کے بعد پاکستان کی سلامتی، کشمیر کی آزادی اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کی گئیں۔ ڈاکٹر عمر ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں نماز عید کے 1000 سے زائد اجتماعات ہوئے، جن میں لاکھوں فرزندان توحید نے نماز عید ادا کی۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع شاہ فیصل مسجد میں ہوا، جس میں اعلیٰ حکومتی شخصیات اور جڑواں شہروں کے رہائشیوں سمیت ملکہ علاقوں کے ہزاروں نمازیوں نے نماز عید ادا کی۔ اس کے علاوہ گولڑا شریف، بارہ کہو، لال مسجد، مسجد اثناء عشری، G6 سمیت مختلف مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ راولپنڈی میں نماز عید کے بڑے اجتماعات عیدگاہ شریف، عسکر مال اور عیدگاہ موڑا شریف راولپنڈی میں ہوئے۔ ان اجتماعات کے علاوہ کئی دیگر مقامات پر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کے بعد ملک اور امت مسلمہ کو درپیش مسائل کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ جڑواں شہروں میں نماز عید کے موقع پہ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر عمر ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، لاہور سمیت پنجاب بھر میں عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ رپورٹ کریں گے معظم الدین۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں ہوا، جہاں اعلیٰ سول حکام اور عوام کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ بادشاہی مسجد کے خطیب اور چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ لاہور شہر میں داتا دربار مسجد، مسجد شہداء اور جامعہ نعیمیہ سمیت 300 سے زائد مقامات پر عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے امت مسلمہ اور اہل پاکستان کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے عوام سے خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ عید احساس کا نام ہے۔ خوشی کے اس موقع پر غریب، بے سہارا اور نادار خاندانوں کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عید کے موقع پر پاک دھرتی کی خاطر جان قربان کرنے والوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے لاہور میں نماز عید کی امامت کرائی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عید الفطر احسار و قربانی اور ضرورت مندوں کی مدد کا درس دیتی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نماز عید اپنے آبائی گاؤں ڈھرنال تحصیل فتح جنگ ضلع اٹک میں ادا کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے عید کی نماز سیالکوٹ کینٹ میں جامعہ مسجد خواجہ صفدر میں ادا کی۔ انہوں نے شہریوں سے عید ملی اور انہیں مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین اور چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آبی وسائل OMNA انجینئر رانا احمد عتیق انور نے عید الفطر کی نماز اپنے آبائی گاؤں ننگل کسوالہ میں ادا کی، جہاں پر علاقہ مکینوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے نماز عید اپنے آبائی گاؤں کھائی ہٹیار میں ادا کی۔ شیخوپورہ میں نماز عید کا مرکزی اجتماع شیخوپورہ کی تاریخی کمپنی باغ میں ہوا، جہاں ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ ننکانہ صاحب میں 500 سے زائد مقامات پر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے، جن میں علماء کرام نے رمضان المبارک اور عید الفطر کے دن کی اہمیت اجاگر کی۔ چنیوٹ میں 150 سے زائد مساجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی گئی اور عید کا سب سے بڑا اجتماع جامعہ صدیق اکبر کے وسیع گراؤنڈ میں ہوا۔ وزیر آباد، گجرات، گجرانوالہ، ساہیوال اور پنجاب کے دیگر شہروں میں عید الفطر کے روح پرور اجتماعات ہوئے، جن میں ملکی سلامتی اور عالم اسلام کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ معظم الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ملکی سلامتی، امن و استحکام اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات منعقد ہوئے۔ ملتان ریجن میں 2000 سے زائد مقامات پر نمازیوں نے عید کی نماز ادا کی۔
मरकजी इज्तिमात जामे मस्जिद ईदगाह, दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया और दरबार हज़रत मूसा पाक शहीद पर मुनक्किद हुए, जहां हज़ारों अफराद ने नमाज ईद में शिरकत की। इस मौके पर वतन अजीज़ की सलामती और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बाहुलपुर डिवीजन में भी नमाज ईद के 414 इज्तिमात का इनेकाद हुआ। जामे मस्जिद ईदगाह बाहुलपुर में डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली मलक ज़हीर इकबाल चन्नड़, साबिक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान समेत हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज अदा की। इसी तरह डेरा गाजी खान डिवीजन में भी सैकड़ों मुकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात का इनेकाद हुआ। मरकजी ईदगाह सिटी पार्क में ईद उल फितर का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नमाज ईद उल फितर की अदायगी के बाद शोधाए पाकिस्तान के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। ईद के इस पुरमसरत मौके पर विहाड़ी, लोहदरा, रहीमयार खान, बाहुल नगर, मेलसी, अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ समेत जनूबी पंजाब भर में अवाम ने ईद की खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटा और बगलगीर होकर मुबारकबाद दी। ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। इज्तिमात के दौरान जनूबी पंजाब भर में हजारों पुलिस एहलकारों और अफसरान ने हिफाजती फराइज सरअंजाम दिए। हसास मकामात पर दाखिले के लिए मेटल डिटेक्टर्स और वॉक थ्रू गेट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाया गया। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। सिंध में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई गई, ताहम छोटे बड़े शहरों में ईद नमाज के इज्तिमात हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के मौके पर सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद नमाज के इज्तिमात हुए। ईद की नमाज के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। कराची में मेमन मस्जिद, ईदगाह, नश्तर पार्क और शाह खुरासा में ईद नमाज के बड़े इज्तिमात हुए। नमाज के बाद उलमा कराम ने अपने खुतबों में उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया। बाद में उलमा कराम ने मुल्क की तरक्की, सालमियत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। सिंध के गवर्नर मोहम्मद निहाल हाशमी ने गवर्नर हाउस में ईद की नमाज अदा की। बाद में मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि हमें मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। आज के दिन हमें अहद करना चाहिए कि हम अपने तमाम वसाइल के साथ अपने मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, कानून की पासदारी करेंगे। आज के दिन एक दूसरे को गले लगाने का दिन है, दरगुजर का दिन है, माफ़ करने का दिन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदाबख्श भुट्टो में ईद की नमाज अदा की। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह भी उनके हमरा थे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत दीगर अहबाब की मज़ारों पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने टंडो जाम में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर मुल्क की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सईद खुर्शीद अहमद शाह और स्पीकर सिंध असेंबली सैयद अवैस कादिर शाह ने सक्खर में ईद उल फितर की नमाज अदा की। इस मौके पर मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। हैदराबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा रानी बाग में हुआ। नमाज के बाद मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। इसके अलावा नवाबशाह, जैकबाबाद, सांगढ़, शिकारपुर, सक्खर, लाड़काना और दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में ईद उल फितर की नमाज के इज्तिमात हुए। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में ईद उल फितर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। नमाज ईद के बाद इत्तेहादी उम्मत की सरबुलंदी, मुल्क की सलामती, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सरफराज शेख की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान भर में ईद उल फितर का त्यौहार मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में ईद के बड़े इज्तिमात मुनक़िद हुए, जहाँ मुल्क की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस कामरान मलाखेल, IG पुलिस मोहम्मद ताहिर खान, सियासी समाजी शख्सियात और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। नमाज ईद के बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की गई, जबकि वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद उल फितर की नमाज अपने आबाई इलाके मीर गुलाम कादिर आबाद बालाई डेरा बुगटी में अदा की। नमाज के बाद वज़ीर आला अवाम में घुल मिल गए और शहरियों से ईद की मुबारकबाद का तबादला किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने अपने पैगामात में कहा है कि ईद उल फितर हमें इत्तेहाद, अखुवत और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखने का दर्स देती है। एक मजबूत माशरे की तश्कील के लिए बाहमी भाईचारे और रवादारी को फ़रोग़ देना इंतहाई ज़रूरी है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा।
खैबर पख्तूनख्वा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाह। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल-हुकूमत पेशावर समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ फर्जंदान इस्लाम ने अकीदत व एहतराम के साथ ईद की नमाज अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। पेशावर में चरसदा रोड पर मरकजी ईदगाह, बाग-ए-नरान, हयाताबाद, सुनहरी मस्जिद समेत दीगर मकामात पर भी ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की सलामती, आलम इस्लाम की सरबुलंदी, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद व इत्तेफाक और क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। उलमाए कराम ने ईद उल फितर की फजीलत बयान करते हुए कहा कि ये दिन खुशी और शुक्राने का मौका है और इस मौके पर गुरबा व मसाकिन को खुसूसी तौर पर याद रखना चाहिए। ईद के पहले दिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से निजी फलाही इदारे के यतीम बच्चों ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में बच्चों ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी के साथ खुशगवार वक्त गुजारा। गवर्नर ने यतीम बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ शरीक की। गवर्नर ने कहा कि यतीम और नादार बच्चे हमारे माशरे का कीमती सरमाया है और इनकी बेहतरीन परवरिश और तालीम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस मौके पर गवर्नर ने बच्चों को ईदी भी दी। गवर्नर हाउस पेशावर में पब्लिक डे का इनेकाद भी किया गया, जहाँ शहरियों ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने शहरियों के मसाइल सुने और उनकी फौरी हल की यकीन दहानी कराई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि शहरियों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएंगे। शहरियों ने गवर्नर के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेशावर के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जहाँ फर्जंदान इस्लाम ने नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे और ये सिलसिला दिन भर जारी रहा। ईद के पुरमसरत मौके पर हमें चाहिए कि माशरे के उन तबकात को भी याद रखें जो इन खुशियों से महरूम है। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। फैसलाबाद में भी ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई गई। शहर भर में 800 से ज्यादा मकामात पर ईद के इज्तिमात हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद। फैसलाबाद में ईद उल फितर के 884 इज्तिमात हुए। ईद के बड़े इज्तिमात सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद जंग बाजार, स्कूल ग्राउंड चंदिया तलावा, जामिया दारुल कुरान, जामिया सल्फिया और अज़ा खाना शब्बीर धोबी घाट में मुनाकिद हुए। ईद के इज्तिमात से खिताब करते हुए उलमाए किराम ने कहा कि ईद मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का सबक देती है। वजीर आजम के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह खान ने पब्लिक सेक्रेटेरिएट चक नंबर 65 जिम्बे में ईद की नमाज अदा की। वो लोगों से ईद मिले और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गजब लिल हक दहशत गर्दी के खिलाफ लॉन्च किया गया है और पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालबा अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो आलम इस्लाम में एक जो है वो इत्तफाक, एक उम्मीद और एक इत्तेहाद की अलामत है। अफ़गानिस्तान साइड पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा दो टूक, बड़ा वाज़ेह और बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। दाखिला उमूर के वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने नमाज ईद मदीना टाउन में अदा की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलमी बहरानी सूरत हाल में बेहतरीन हिकमत अमली पर अमल पैरा है। जब तक वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन जिस पे पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश कोई ऐसी नहीं है कि जो दूसरी दुनिया से अलहदा हो, पूरी दुनिया ही अफगानिस्तान से चाहती है कि उसकी सरजमीन उसके खिलाफ इस्तेमाल ना हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर आबिद शेर अली ने ईद के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत वतन अजीज को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए कोशा है और कौमी मफाद में बेहतरीन पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की की राह पर गामजन है। इतने कठिन हालात के बावजूद भी पाकिस्तान अपनी सफ़ों में मुत्तहिद है और पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से कायम दायम रहेगा। ईद के इज्तिमात में मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं की गईं। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। गिलगित बल्तिस्तान में ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शेर अब्बास की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। गिलगित बल्तिस्तान भर में सैकड़ों मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। गिलगित में आगा खान शाही पोलो ग्राउंड, इमामिया ईदगाह जुटियाल, नुसरतुल इस्लाम कोनुदास, लालिक जान स्टेडियम
और रुतफाव डिग्री कॉलेज मोहम्मद आबाद दनियोर में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। इस मौके पर उलमाए कराम ने रमज़ान उल मुबारक और ईद उल फितर की अहमियत पर रोशनी डाली। इज्तिमात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और मकबूजा मुस्लिम इलाकों की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने आगा खान शाही पुल ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। बाद में वो नमाजियों में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद दी। जिला हुंजा, जिला नगर और जिला गजर समेत ध्यामर अस्तोर डिवीज़न में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। जिला सिकरदो, जिला गांचे, जिला खरवंग और शिगर में भी हज़ारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर उलमाए कराम ने अपने खुतबात में ईद के पैगाम, इत्तेहाद उम्मत और मुल्क की तरक्की पर जोर दिया। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला में नमाजियों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। सैयद शेर अब्बास, PTV न्यूज़, गिलगित। आज़ाद कश्मीर में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के हज़ारों इज्तिमात हुए। तफसील अदील अहमद की रिपोर्ट में देखिए। आज़ाद कश्मीर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मरकजी ईदगाह मुजफ्फराबाद में मुनक्किद हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर और सियासी और समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज ईद अदा की। नमाज ईद के खुतबात में उलमाए किराम ने रमज़ान अल मुबारक की अहमियत और फजीलत पर रोशनी डाली और इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेकाम और कश्मीर और फ़लस्तीन की जल्द आज़ादी और मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों, दहशत गर्दों, इंतहा पसंदों और फितना परवर अनासर से महफूज रखने के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की क़यादत में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के ज़ेरे एहतमाम मकबूजा जम्मू कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। रैली में मकबूजा कश्मीर में भारतीय और ईरान और गजा में इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सरहदों पर मामूर अफवाज पाकिस्तान के जवानों को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मीरपुर, कोटली बाग और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से बगलगीर हो गए और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते रहे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद। मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरी मिट्टी मेरी जान पाकिस्तान जिंदाबाद। फर्ज पहले खुशियां बाद में। पाक फौज के जवानों का हर त्यौहार पर सरहदों की हिफाजत का पुख्ता अज़्म, बर्फीले पहाड़ों और आहनी अज़्म के साथ दुनिया के बुलंद तरीन महाज सियाचिन से पाक फौज के बहादुर सपूत कौम को ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। सियाचिन की बुलंद बर्फानी चोटियों पर हमारे बहादुर जवान ईद जैसे खुशी के मौके पर भी वतन की खातिर डटे हुए हैं। वतन के महापुरुष सियाचिन की बर्फपोश पहाड़ियों से पूरी कौम पाकिस्तान को ईद मुबारक पेश करते हैं। आप अपने घरों में अहले खाना के साथ ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं। हम यहाँ सख्त सर्दी, तेज बर्फानी हवाओं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए मुस्तैद खड़े हैं। हमारी सबसे बड़ी खुशी यही है कि पाकिस्तान का हर शहरी अमन, सुकून और आज़ादी के साथ ईद की खुशी मना सके। इन बर्फानी चौकियों पर हर सिपाही के दिल में एक ही जज्बा है, वतन की हिफाजत और कौम की सलामती। आपकी दुआएं हमारी ताकत है और आपकी मोहब्बत हमारा हौसला। आप सबको ईद मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया ने आज मुसलसल 8वें बरस श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद सील करके कश्मीरी मुसलमानों को ईद उल फितर की नमाज अदा करने से रोक दिया। KMS के मुताबिक इंतजामिया ने जामिया मस्जिद के दरवाजे आज अलसुब बंद कर दिए और मस्जिद के अतराफ में बड़ी तादाद में भारतीय फोर्सेज एहलकार तैनात कर दिए। इंतजामिया ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक को आज भी घर में नजरबंद रखा। मीर वाइस उमर फारूक ने एक्स पर एक बयान में जामिया मस्जिद की बंदिश की मजम्मत करते हुए कहा कि इंतजामिया ने इस बरस भी मस्जिद ईद नमाज के लिए बंद कर दी। उन्होंने कहा कि खुशी का यह दिन कश्मीरी मुसलमानों के लिए ज़हनी अज़्ज़त और करब में मुब्तला गया और ये सितम ज़रीफ़ी है कि हमारी मसाजिद और ईदगाहों को ताले लगाने वाले ही सबसे पहले हमें ईद मुबारकबाद देते हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी भारतीय इंतजामिया की तरफ से श्रीनगर की तारीखी जामिया मस्जिद में नमाज ईद की इजाज़त ना देने पर शदीद गम और गुस्से का इज़हार करते हुए कहा कि सबसे बड़ी मस्जिद पर पाबंदियाँ इलाके में हालात मामूल के मुताबिक होने के भारतीय दावों के मुनाफी हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में ईद के मौके पर जामिया मस्जिद की बंदिश की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावा करता है, जबकि दूसरी तरफ उसने कश्मीरियों को मजहबी हुकूक से भी महरूम कर रखा है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुक्मरान कश्मीरियों की आज़ादी की आवाज़ को हथकंडों के ज़रिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारत में एलपीजी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कई कंपनियां बंद होने के करीब हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक हजारों मजदूर शहर छोड़कर आबाई इलाकों का रुख करने लगे हैं। भारतीय मजदूर का कहना था 5 रोज से खाना पकाने के लिए गैस नहीं। जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो भी बंद होने वाली है। हिमाचल प्रदेश की रियासती असेंबली का किचन गैस से लकड़ियों पर मुंतकिल हो गया। शहरी कई इलाकों में 4 से 5 दिनों से लाइन लगाकर सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं। कुछ खवातीन अपनी मुश्किलात बयान करते हुए आपदीदा हो गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। मर्द हजरात भी अपनी बेबसी जाहिर करते हुए आपदीदा नजर आए। एक शख्स ने वीडियो में बताया कि वो रात 3 बजे से लाइन में खड़ा है। सुबह 11 बजे तक गैस नहीं मिली। इसके घर वाले भी भूखे हैं। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर वहशियाना हमले जारी हैं। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी बदसूर जारी है। ताज़ा हमलों में तल अवीव में जोरदार धमाके सुने गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद उस्मान। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान की नतिंज जोरी तंसीबात पर हमला किया गया। अमेरिकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि ईरानी खुफिया ठिकानों को 5000 पाउंड वजनी बमों से निशाना बनाया गया है। कमांडर सेंटकॉम का कहना है कि अपनाए हुर्मुज़ में महफूज नकलो हमल के लिए चैलेंज बनने वाले हर खतरे को निशाना बनाएंगे। ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ताज़ा हमलों के बायस इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब में धमाके हुए। मिसाइल के टुकड़े गिरने से आग भड़क उठी। कई इमारतों को नुकसान पहुंचा, जिसके बायस 9 अफराद जख्मी हो गए। हैफा और अशदोद रिफाइनरीज नसरुल्लाह मिसाइल का निशाना बन गई। कुवैत की मनाल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। कई यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। इराकी मुजाहमती गिरोह के विक्ट्री बेस और अरबेल में अमरीकी अड्डू पर ड्रोन हमले किए गए। ईरान के पासरान इंकलाब का कहना है कि बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से खित्ते में अमरीकी अफवाज के ठिकानों, रेडार सिस्टम और मकबूजा फलस्तीनी इलाके में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान ने अमरीका और बरतानिया के मुश्तरका फौजी अड्डे पर दरमियानी फासला तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। एक नई तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक 2 हफ्तों में मशरिक़ वस्ता में अमरीका के ज़ेरे इस्तेमाल फौजी अड्डों पर ईरानी हमलों से तकरीबन 80 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास रागची ने कहा है, ईरान, जापान और इससे मुतल्लिक़ जहाज़ों को अपनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त देने के लिए तैयार है, जिसके लिए जापानी हकाम के साथ गुफ्तगू जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस इक़दाम का मकसद अपनाए हुर्मुज़ में मौजूद रुकावटों में आर्जी नरमी लाना है। बैनुल-अक़वामी खबर सादारे राइटर्स के मुताबिक जनूबी कोरिया ने ऐलान किया है कि वो भी अपनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने की बैनुल-अक़वामी कोशिशों में हिस्सा लेने के लिए तैयार है। अमरीका ने ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त पर 30 रोज के लिए आर्जी तौर पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया है। नए जारी करदा लाइसेंस के तहत उन बहरी जहाज़ों को तेल की फरोख्त की इजाजत दी गई है जिन पर सामान पहले से लोड किया जा चुका है। ये खुसूसी लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। दूसरी जानिब ईरान ने इस अमरीकी इक़दाम को आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का एक नफसियाती हरबा करार दिया है। खेलों की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद दी है। कौमी क्रिकेटर्स ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अहले खाना और दोस्तों के साथ खुशियों भरी ईद मनाएं। मेरी तरफ से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से आप सबको ईद बहुत ज़्यादा मुबारक। बहुत सारा ख्याल रखें और अपने दोस्त और फैमिली के साथ इस ईद को खुशी से मनाएं। मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान में और दुनिया में जहाँ भी है, सबको ईद मुबारक। मेरी तरफ से आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ में याद रखें और जितने भी बाहर लोग मुसाफिर हैं उनको भी स्पेशली ईद मुबारक। मेरी तरफ से सब पाकिस्तानियों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। कौमी ख़वातीन खिलाड़ियों ने भी ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर पूरी कौम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। खुश रहें और ईद की खुशियाँ अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी बांटें। मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है आप ये ईद बहुत अच्छे से अपने प्यारों के साथ गुजार रहे होंगे। आप सबको मेरी तरफ से दिल के गहराइयों से ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। ईद मुबारक। पूरे अहले वतन को ईद मुबारक। अपने और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी कर दिया गया। खेलेंगे बीट पे तराना, क्रिकेट और म्यूजिक का जबरदस्त इम्तिजाज है।
नाज़रीन, खेलों की खबरें आपने जानी। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। फिलवक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।